Hey students, welcome to Medics Academy. So here I am presenting a series of videos on biology for class 10 ICSE students where I'll be going the in-depth explanation of each and every topic that is being given in your syllabus. I will be sharing the tips and tricks related to biology about how to write answers in your examination, how to present your answers, because biology is all about presentation, and it is very important for a student to present answers in the examination with the help of certain media such as diagrams, such as explanations, such as examples. Okay, I'll be sharing everything to you, but in return what I want is, since this is an online tutorial, I want you to be attentive first of all, to concentrate things, and whatever I'll be sharing with you, I want that in your answer paper or in your notebook, because whatever I speak is an important point and you have to note it down, and you will note it down only if you will be concentrating things. So if you feel any point that is important, or if you feel any point that is new to you, I want you to note it down. And since biology is all about presentation, and it is all about, okay, memorizing, right? No, it's not about memorizing things. It's about understanding it. It's about explanation, and it depends upon how much you are concentrating and how much you remember things. And for remembering, you need to, okay, revise it again and again. So what exactly I want from you is, while explaining things, I want you to concentrate, I want you to be attentive, and whatever explanation that I'm speaking of in front of you, I want those explanation in your notebook. Why? Because you have to jot down certain points, and it goes like simultaneously. I will be teaching things and you have to note those points down in your notebook. Every lecture is being deciphered in form of notes, and I have prepared the notes for every lectures, and you can easily find out those by clicking on the link provided in the description box. But wait, that should be done at the end of every lecture. I will be explaining things, you have to remember them, you have to note it down, and then at the end of each class you will be looking for the notes, and you have to compare the two, that is your jotted points as well as my notes, and then you have to remember things. So the thing about biology is, you have to revise it. It's not like कि हाँ किसी का बाराती है जाके नाच के आ गए काम खत्म. No, it is not like that. It's all about बार बार नाचना है. That makes, because that is important. Okay, and practice will make you perfect. This topic demands explanation. This subject actually, okay, demands explanation, and in this subject, while, okay, learning this subject, you have to be alive, because alive is awesome. So let's begin it. So first of all, we'll be starting with the topic, the structure of the chromosomes. Okay, we'll be, okay, discussing the types of chromosomes, the orientation of the chromosomes, उनका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों पढ़ेंगे, उनका फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही आगे जाके डिवाइड करेंगे और एक नया इंडिविजुअल, मतलब एक नया सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और सेल से बनेगा टिश्यूज, टिश्यूज से बनेगा ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली आपका जो ऑर्गन सिस्टम है उससे बनेगा ऑर्गेनिज्म. तो ये सारा चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है. You have seen in your class 9, okay, textbook all about, like you have read about the cells in your class 9 books, right? तो वो सेल में हम लोग को देखते हैं कि भाई जो सेल होता है, that is acting as a basic unit of life, और which is the structural and the functional unit of life. अब सेल के अंदर में हम एक सेंट्रल एलिमेंट देखते हैं जो कि सारा फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, that is called as the nucleus, right? ये जो न्यूक्लियस है, दिस कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, और ये सेल्स का सारा फंक्शन को कोऑर्डिनेट करेगा. जैसे हम लोग कौन जानते हैं भाई कि सेल्स के अंदर में क्या होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे इसको? साइटोप्लाज्म. बोलना सीखो, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आपको बोलना भी है.
सो दैट यू कैन लाइक जो बहुत सारा ऐसा मतलब टेक्निकल टर्म्स होता है जो आपको याद रह जाएगा बोलते बोलते, ठीक है। तो सेल्स के अंदर में जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर में वही सेम साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में क्या होता है, बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि आपस में कॉइल होके है, ओके। बहुत सारा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपस में कॉइल होके है। ऑल दिस थ्रेड लाइक मतलब फाइबर्स और दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन फाइबर्स। अब नॉर्मली सेल जब अपना रेस्टिंग पीरियड में है, देखिए सेल का जो लाइफ स्पैन है, जैसे अपना लाइफ स्पैन को मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है। एक है चाइल्डहुड, एक है आपका जो टीन एज, उसके बाद आता है मतलब एडल्टहुड। वैसे ही सेल में अगर देखा जाएगा तो उसका जो एंटायर लाइफ स्पैन है, जहां पे वो एक सेल से दूसरा सेल में डिवाइड करेगा, मतलब एक सेल क्या करेगा, ओके, आफ्टर सेल डिवीजन वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा, जो कि हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। आगे जाके मैं उसको समझाऊंगा क्या होता है। तो एक सेल का जो ट्रांजिशन हो रहा है 2 सेल्स में, इसका मोटिव ही यही है। इसको लाइक एक सेल बना, ठीक है, उसका एंड मोटिव है कि वो मल्टीप्लाई करके वो डिवाइड करके खत्म, उसके बाद और उसका कोई रोल ही नहीं है। सो ये जो उसका टाइम स्पैन है, ये टाइम स्पैन को हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक है रेस्टिंग पीरियड, एक है ओके रेस्टिंग पीरियड, जहां पे सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा, अपना मास गेन करेगा, अपने अंदर में क्या करेगा कि बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जिसका ग्रोथ करवाएगा, लाइक आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ओके, तो डीएनए का सिंथेसिस होगा, ये सारा चीज होता है आपका रेस्टिंग पीरियड में। और एक फेज है दैट इज कॉल्ड एज द माइटोटिक फेज और द डिवाइडिंग पीरियड। ये जो डिवाइडिंग पीरियड में क्या होगा, सेल्स कुछ ऐसा इनिशिएटिव्स लेगा, कुछ ऐसा स्टेप्स लेगा जहां पे वो 1 से 2 में कन्वर्ट होगा या 1 से 4 में कन्वर्ट होगा, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिवीजन दैट इज बीइंग एक्टिंग अपॉन इट। Like in case of mitotic division, 2 daughter cells are formed, and in case of meiotic division, 4 daughter cells are formed। ये मैं बाद में समझाऊंगा। अभी आप माइंड में क्या रखो कि भाई जो सेल है वो 1 से 2 या 1 से 4 या 1 से ज्यादा में मल्टीप्लाई अगर होगा तो वो 2 फेज में आएगा, एक है रेस्टिंग फेज, एक है डिवाइडिंग फेज। आपका रेस्टिंग फेज में क्या होगा, सेल ग्रो कर रहा है, सेल मतलब जैसे ह्यूमंस ग्रो करते हैं, ओके, बचपन में मतलब चाइल्डहुड में छोटे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन आ रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स ग्रो कर रहा है, और देन एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक उसका हाइट वगैरह सब इंक्रीज हो रहा है। वैसे सेल में भी क्या होगा, देयर इज अ ग्रोथ पीरियड और देयर इज अ रेस्टिंग पीरियड, उसके बाद देयर इज अ डिवाइडिंग मतलब पीरियड। सो ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड, ओके, जो कि उसका लाइफ स्पैन का मैक्सिमम टाइम लेता है, रेस्टिंग पीरियड में आपको कभी भी क्रोमोसोम्स दिखेगा नहीं। क्यों? बिकॉज वो ही क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में कॉइल्ड होके चारों तरफ में है। हम जानते हैं कि भाई आपका न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस भी होता है, बट अभी उसको अवॉइड करते हैं। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द क्रोमैटिन फाइबर्स। सो सेल के अंदर में जो जो आपका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन फाइबर्स, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली, सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त ही ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है दे विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। During cell division only, these chromatin fibers they condense to form chromosomes। कैसे होता है आगे जाके बताऊंगा, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, कैसे कंडेंस कर रहा है, कैसे कॉइल हो रहा है, सुपर कॉइल हो रहा है, वो सब आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी आप ये चीज याद रखो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ओनली द क्रोमैटिन फाइबर्स आर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, राइट। सो क्रोमोसोम्स कैसे आया, नाम कैसे आया, तो हम देखते हैं कि वो तो व्हाट आर क्रोमोसोम्स, दीज आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। दे आर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बिकॉज मैं आपको पहले ही बोला हूं कि कंडेंसेशन, और कोई चीज अगर कंडेंस कर रहा है तो कॉम्पैक्ट होगा ही। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या होता है कि कंडेंस करके छोटा होना, कॉम्पैक्ट होना। तो कोई चीज अगर मतलब कंडेंस कर रहा है तो वो कॉम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे वैसे ही देखा जाएगा, दीज आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, खुद से रिप्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं बेटा ताली मार, हाँ चल 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 रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट हो, जल्दी जल्दी 2 मिनट में हो, ऐसा करने से भी नहीं होगा बाबा।
ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस करेगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन। जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिप्रोड्यूस करेगा, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। सो दीज आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर हाईली कॉम्पैक्ट, ठीक है। नॉर्मली रॉड शेप्ड होते हैं बट दे आर हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और ये जो कंडेंस्ड फॉर्म किसका है, क्रोमैटिन फाइबर्स का है। यही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस करके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होंगे। तो क्रोमोसोम्स को मैं अगर तोड़ूंगा तो ये आता है टर्म, एक आएगा क्रोमा और एक होता है जोम। जोम का मतलब है आपका बॉडी और क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी व्हीकल्स। ओके, क्यों इनको बोला गया हेरिडिटरी व्हीकल, बिकॉज दीज आर द स्ट्रक्चर्स। तो क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। और डीएनए में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज जीन्स। लाइक फॉर एग्जांपल ये इस तरह दिखता है क्रोमोसोम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या क्या पार्ट्स है, बट आप अभी फिलहाल याद रखो कि ये जो क्रोमोसोम के अंदर में कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, दीज आर कॉल्ड एज द डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज द डीएनए। ओके, सब चीज बताया जाएगा जस्ट फॉर द ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और ये डीएनए में क्या होता है, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये सीक्वेंसेस का पेयर्स को या एक साथ 2-3 सीक्वेंस या 4-5 सीक्वेंस को मिला के हम बोलते हैं जीन्स। और हम ये चीज जानते हैं कि जीन्स आर द सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए, ओके, जो क्या करेंगे, आपका जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ जीन्स द characters are getting transmitted from one generation to another generation, या बोल सकते हैं from the parent generation to the daughter generation, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू होता है। और वो जीन्स किस में प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है। और वो डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्रोमोसोम क्या है, दिस आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। सो द क्रोमोसोम्स hence since they carry the genes which carry the characters from one generation to another generation, or which helps in the transfer of the characters from one generation to the another generation, hence they are called as hereditary vehicles, right? नेक्स्ट आते हैं इसका डिस्कवरी पे। और जो सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किए थे, ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, ओके, नेम्ड एज वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। 1882 में ये डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था क्रोमोसोम्स, किसमें, इन द लार्वा ऑफ द सैलामेंडर। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑल अबाउट एटीपी। यहाँ पे एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, दिस इज माय ओन लाइक डेरिवेशन कॉल्ड एज एडिशनल टारगेट पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सारा पॉइंट्स आपको मतलब कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है या बोर्ड में पूछा गया है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली, ओके। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को आएंगे, ओके, दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है, बट द नंबर इज कॉन्स्टेंट इन द सोमैटिक सेल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, हर सोमैटिक सेल्स में बेसिकली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कांस्टेंट रहता है। इसको ध्यान से समझें। जैसे अगर देखा जाएगा तो पहले मैं सेल्स के बारे में बात करता हूं, दैट इज द सोमैटिक सेल्स एंड ओके गैमेटिक सेल्स। दो तरह के सेल्स होते हैं एक इंडिविजुअल के बॉडी में, एक है सोमैटिक सेल्स और एक है गैमेटिक सेल्स। सोमा किसकी माँ, सोमा का मतलब है बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी सेल्स है जो कि बॉडी में रहेंगे, हर जगह रहेंगे, मुंह में रहेंगे, हाथ में रहेंगे, पैर में रहेंगे, नाक में रहेंगे, कान में रहेंगे, हर जगह रहते हैं। लेकिन गैमेट्स आर द सेक्स सेल्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन द गोनैड्स बेसिकली, ओके, जो कि हम लोग का टेस्टिस एंड ओवरीज है, वहां पे ये गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सोमैटिक सेल्स में जितना क्रोमोसोम होता है उसका आधा क्रोमोसोम होगा गैमेटिक सेल्स में, बिकॉज जो क्रोमोसोम जो होते हैं जनरली
जो आपका सोमैटिक सेल्स है वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें डिप्लॉयड बोल सकते हैं, ओके डिप्लॉयड। जैसे प्लॉइडी लेवल एक होता है, ओके प्लॉइडी लेवल इट लाइक डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ ह्यूमन बीइंग और इनसाइड एनी लिविंग इंडिविजुअल। यहाँ पे डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे हैप्लॉयड होता है, ओके। सोचिए अगर ह्यूमंस के फॉर्म में अगर हम लेंगे तो ह्यूमन का क्रोमोसोमल नंबर अगर देखा जाएगा तो वो 23 पेयर्स है, मतलब टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, ठीक है। ह्यूमंस में क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। 23 पेयर क्यों बोला गया भाई, ओके 23 पेयर इसलिए बोला गया बिकॉज हर पेयर एक यूनिक एंटिटी है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये एक क्रोमोसोमल पेयर है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोमल पेयर है। और जो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम हम काउंट करते हैं, जो काउंट करके हम सेट करके रखते हैं पेयर वाइज, उसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग, ठीक है। उस कैरियोटाइपिंग में हम देखते हैं कि टोटल क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होगा, ओके। सो ह्यूमंस में अगर 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो सोमैटिक सेल्स में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। और गैमेटिक सेल्स में क्या होता है, 23 ही रहता है। तो ऑलवेज गैमेट्स कंटेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन द सोमैटिक सेल्स, ठीक है। मेजॉरिटी सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होगा बॉडी के चारों तरफ में, और सिर्फ आपका जो गोनेड्स होता है, जो टेस्टिस ओवरीज होता है, उसी में सिर्फ गैमेटिक सेल्स या गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। So the first ATP is all about total number of chromosomes varies in a different species। जैसे अगर मॉस्क्यूटो में देखा जाएगा, मॉस्क्यूटो का क्रोमोसोमल नंबर है 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सोमैटिक सेल्स, ओके। मॉस्क्यूटो का क्रोमोसोमल जो नंबर है वो है 6, मतलब इसमें टोटल कितना है आपका 3 पेयर्स बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ 6। ह्यूमन में देखा जाएगा, ह्यूमन में कितना है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट टोटल, ओके, अगर सोमैटिक सेल्स में देखा जाएगा। तो वैसे फ्रॉग में अगर देखा जाता है तो 26, रैट में होता है 42, फ्रॉग में होगा आपका 26, रैट में होता है 42। वैसे ही अगर गैमेटिक सेल्स देखा जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका 23 हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर देखा जाएगा तो 13 हो जाएगा और इसका 21 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल मॉस्क्यूटो, चाहे एक मॉस्क्यूटो हो, चाहे दूसरा मॉस्क्यूटो हो, चाहे तीसरा मॉस्क्यूटो है, उसमें टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द सोमैटिक सेल विल ऑलवेज बी रिमेन 6। बट इफ विल कंपेयर बिटवीन मॉस्क्यूटो एंड ह्यूमन, देखो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर देखा जाएगा, एक स्पीसीज में देखा जाएगा, तो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट क्रोमोसोमल नंबर होता है, एंड क्रोमोसोमल नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल्स में डिफर करता, बट इन अ सिंगल स्पीसीज all the individuals of the single species contains equal number of chromosomes। so this was our first point, first ATP point, ठीक है। तो पहला ATP क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम varies in different species but individuals of a species contains equal number of chromosomes। next ATP is somatic cells में क्या होता है, they are always diploid का मतलब होता है 2n, और जो gametes होता है they are haploid का मतलब है आधा, ओके। जैसे ह्यूमंस में अगर देखा जाएगा, सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है विच इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। सोमैटिक सेल में 46 होगा और गैमेट्स में 23 होगा। इसीलिए जो स्पर्म होता है वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है स्पर्म में, और जो ओवम होता है
उसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46। तो ह्यूमंस में सिंस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक चाइल्ड में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटेन होगा, एंड दैट शोज द सिमिलैरिटी। कोई अगर पूछेगा क्वेश्चन, सर अगर मान लीजिए स्पर्म में 46 होगा, स्पर्म में 46 हुआ, चलो मान लिए, सपोज ले सकते हैं कुछ भी भाई, ओवम में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर ट्रांसफर हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो टोटल क्रोमोसोमल नंबर कितना हो गया? 92। ठीक है, 92। तो देखा जाएगा, देखो स्पीसीज डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? मैं बोला हूं, इन अ सिंगल स्पीसीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एवरी इंडिविजुअल शुड बी सिमिलर। ठीक है, एक स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल शुड बी सिमिलर। ठीक है, तो जो फादर है, फादर में अगर 46 हो गया, और अगर मतलब मदर में अगर 46 हो गया, मतलब स्पर्म में अगर 46 है, ओवम में अगर 46 है, जो फादर है वो ह्यूमन है, जो मदर है वो भी ह्यूमन है, जो बच्चा वो बन गया शक्तिमान। क्यों? उसमें 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इन ऑर्डर टू रिटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in the child so as to form it a human species, we have to we have to like equate the number of chromosome as similarity, और we have to show that कि इसमें भी उतना ही क्रोमोसोम होगा जितना उसके मॉम एंड डैड में होगा, so as to form a single human species. So that's why for a single species the number of individual should contain same number of chromosome। ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी है, आप जान सकते हो। सपोज आप गए मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट में, वहां पे कुछ एक स्पीसीज, वहां पे कुछ एक एनिमल का एक छोटा सा फ्रैगमेंट आपको मिला, तो आपको नहीं पता कि वो कौन सा मतलब एनिमल है, बट आप जानना चाहते हो, आप उसका सेल लो, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखो, अगर वो 46 हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई मरा पड़ा था वहां पे, right? So number of chromosomes also give an identification mark to recognize the type of species that we are having in our ecosystem. Okay, so the next ATP is वही जो ह्यूमंस के बारे में बोला था कि उसका 23 पेयर्स होता है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होता है, स्पर्म सेल्स में होगा 23, ओवम में होगा 23। दैट वाज द नेक्स्ट एटीपी। नेक्स्ट, साइज ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज साइज ऑफ क्रोमोसोम्स। साइज ऑफ क्रोमोसोम varies for different organisms. ओके, साइज डिफर कर सकता है। ठीक है, कोई पेयर, कोई क्रोमोसोमल पेयर क्या होगा भाई? छोटा होगा, कोई क्रोमोसोमल पेयर बहुत बड़ा होगा। तो साइज एक सेल में, एक सोमैटिक सेल्स में साइज ऑफ क्रोमोसोम वैरी कर सकता है। सो ये चारों एटीपी हम लोगों ने तो कवर कर चुके हैं। या फिर पहले मैं आपको बोला कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मतलब वैरी करता है डिफरेंट स्पीसीज में, जबकि इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। द सेकंड इज कि जो आपका सोमैटिक सेल्स होता है वो डिप्लॉयड होता है, जो आपका गैमेट्स होता है वो आपका हैप्लॉयड होता है। थर्ड, अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो ह्यूमन में भाई 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, जिसमें अगर देखा जाएगा तो आपका जो सोमैटिक सेल्स में 46 होता है, और जो मतलब गैमेट्स होता है उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। द फोर्थ पार्ट इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि वैरी करता है, इंडिविजुअल स्पीसीज में वैरी करेगा। Okay, because it all depends upon the type of the chromosome that an individual is having, right? So next we will be discussing about the morphology of a typical chromosome. Okay, क्रोमोसोम के बारे में जानने का पहले उसका पार्ट्स और उसका सब कैटेगरीज जानना बहुत जरूरी है। So a typical chromosome, see, it looks like this. जहां पे these are the chromatids, ठीक है, this is the point of attachment called as centromere. ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। these are the chromatids, this is the centromere, this zone is called as the telomere। ठीक है, और ये जो chromatids है इसके अंदर में DNA फ्रैगमेंट्स होगा,
ओके, सो अ टिपिकल क्रोमोसोम ओके लुक्स लाइक दिस, और एक क्रोमोसोम के अंदर में 4 पार्ट्स होता है। सबसे पहला है क्रोमैटिड्स, द सेकंड इज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, द थर्ड पार्ट इज secondary constriction, and the fourth one is telomere। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं तो क्रोमैटिड्स पे। तो जो क्रोमैटिड्स क्या होता है, अ टिपिकल क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमैटिड्स ओके विच आर जॉइंट एट सम पॉइंट ऑफ देयर लेंथ। ओके, जैसे ये 2 क्रोमैटिड्स है, हर टिपिकल मतलब क्रोमोसोम में देखा जाएगा तो भाई 2 क्रोमैटिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। और ये जो दोनों जो क्रोमैटिड्स है इनमें अगर देखा जाएगा सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ओके, और ये जहां पे इन लोगों दोनों आके मतलब जो आपस में आके ज्वाइन करेंगे दैट कंटेन्स अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन। मतलब थोड़ा से आके वो क्या किया है कि कंस्ट्रिक्ट हुआ है। जैसे सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ ओके अटैचमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। ये जो सेंट्रोमियर होगा उसके पास जो आपका क्रोमैटिड आ रहा होगा, सोचिए ये आपका क्रोमैटिड है, सो ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। ओके, जैसे ही ये पास आता है ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। ओके, सो दे आर मतलब कंस्ट्रिक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। ओके, और ये सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी बोलते हैं। ओके, द सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काइनेटोकोर। अब ये सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या है कि भाई ये क्या करेगा, ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे आके वो मतलब आपका जो जो क्या करता है, ये जो सेंट्रोमियर को हम लोग काइनेटोकोर भी बोलते हैं। सो each chromatid it contains a long strand of DNA or a long molecule of the DNA which is having genes, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो कि आपका कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे, जो हेरिडिटरी मतलब जो कैरेक्टर्स को लेके जाएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, द नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑल अबाउट द सेंट्रोमियर। तो हम लोग उन सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है डिवीजन। देखिए ये जो एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमैटिड है, ये जो एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमैटिड है, इसमें जो सबसे पहला जो मतलब जो डिवाइड किया, जो सेपरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। ठीक है, सो द सेंट्रोमियर हेंस इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। एंड इसका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन के वक्त आप जानते हो, आप ये चीज सेल में पढ़े हो कि जो आपका सेंट्रोजोम्स होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और जो सेंट्रोजोम्स होता है उसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, दिस इज द सेंट्रोजोम एंड दीज आर द सेंट्रियोल्स। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस फाइबर्स आर कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। आगे जाके हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, स्पिंडल फाइबर्स होता क्या है, उनका मेन फंक्शन क्या है। बट अभी आप याद रखें कि जो स्पिंडल फाइबर्स है ये जाके अटैच होता है एट द सेंट्रोमियर पोजीशन। ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ये सेंट्रोमियर पोजीशन में अटैच होता है। बिकॉज आप देखो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट्स और उसके बाद वो डिवाइड करेगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेट किया उसके बाद क्रोमोसोम डिवाइड भी करेगा, तो डिवाइड करने के लिए एक अटैचिंग पॉइंट जरूरी है। तो यहाँ पे आके उन लोग क्या करते हैं, अटैच होते हैं। और उसके बाद आगे जाके आप ये चीज पढ़ोगे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स का जो एंड है, जो पोल्स होता है, वो उसको पुल करेगा, सो ये बीच से सेपरेट होगा। But for the cell division, the attachment of the spindle fiber is very much important. Hence, spindle fibers are attached at the centromeric position. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि जो आपका सेंट्रोमियर होता है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, सिंस ये सेंट्रोमेरिक पोजीशन में अटैच हो गया है एंड सिंस स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकते हैं, तो दे ओके एनेबल द क्रोमोसोम टू मूव बेसिकली। ओके, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपका हो भी सकता है, एक क्रोमोसोम में नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स बेसिकली। एक और कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पे आता है, सोचिए एक और अगर सेपरेशन आता है, देन दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन अ क्रोमोसोम।
like okay, sometimes the arm of a chromosome has a constriction, okay, other than the primary constriction. Since the centromere is called as the primary constriction, इसको छोड़ के कहीं और अगर constriction होता है कोई एक आर्म, मतलब कोई एक क्रोमोसोमल आर्म में, then that is called as secondary constriction. अब इसका फायदा क्या है, ओके, या इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली अगर देखा जाएगा तो सेल डिवीजन के वक्त पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है दे बेंड एट देयर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, बट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के तरफ वो बेंड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? बिकॉज स्पिंडल फाइबर आपका अटैच होता है सेंट्रोमियर में, वो जैसे चाहेगा सेंट्रोमियर के साथ खेल सकता है, तो वो क्या करेगा, क्रोमोसोम को बेंड कर देगा कंप्लीटली। आप सोचिए ना, ये अगर क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर रहा है, सो एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, जब स्पिंडल फाइबर मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट करके अगर उसको सेपरेट करेगा, तो भाई जो क्रोमोसोम है वो इस तरफ बेंड हो गया है। क्यों? ये सोचिए ड्रैग कर रहा है, पुल कर रहा है। लेकिन अगर इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये बेंड होगा क्या? ये तो होगा ही नहीं। सो इट इज नॉट लाइक a beneficial factor, but you can take this as a character. ठीक है, लास्ट इज द टेलोमियर। ओके, द टेलोमियर इज द एंड पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, द एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, द एंड टेल और द एंड टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टेलोमियर। ओके, और इसका मतलब फंक्शन क्या है? जैसे मतलब बेसिकली क्या करता है, जो आपका टेलोमियर होता है, इट प्रोटेक्ट्स द क्रोमोसोम फ्रॉम द डिग्रेडेशन एंड फ्यूजन विद अदर क्रोमोसोम। अब ये तो मतलब मंडली तो नहीं है कि 5-6 तो क्रोमोसोम आके सट गया, भाई हम भाई भाई है, हम दोस्त दोस्त है, तो मिल के चलो बैठ के मुजरा करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो एंड पोर्शन है, यहाँ पे आके भी बहुत सारा क्रोमोसोम आके अटैच हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस, ओके, मतलब टेलोमियर ये क्या करेगा, इस एंड पोर्शन को कनेक्ट करने देगा नहीं, दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ में इस एंड पोर्शन को कनेक्ट करने देगा नहीं। ठीक है, और ये क्या करता है, आपका जो क्रोमोसोम का डिग्रेडेशन को मतलब आपका ये क्या करता है, जो आपका क्रोमोसोम का डिग्रेडेशन होने देगा नहीं, और दूसरा बात है कि ये आपका एंड पोर्शन को प्रोटेक्ट या मतलब प्रिवेंट करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द अदर क्रोमोसोम्स। नाउ ओके, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, अगर हम लोग उन सेंट्रोमियर का पोजीशन को कंसिडर करेंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ द like okay different positions of the centromere, the chromosome can be subcategorized into 4 categories. okay, 4 categories में हम chromosomes को categorize कर सकते हैं on the basis of the position of the centromere. okay, the first one is okay telocentric, the second one is acrocentric, the third one is submetacentric, and the fourth one is metacentric. तो देखिए, तो टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, आप इसको मानिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमैटिड है, दूसरा क्रोमैटिड है। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर अगर टिप पे प्रेजेंट होगा तो क्या पार्टीशन हो पाया? अगर सेंट्रोमियर पूरा टिप पे प्रेजेंट होगा तो क्या हम क्रोमोसोम को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप पोर्शन, ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टीलोसेंट्रिक। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही आर्म होगा। ठीक है, एक ही आर्म होगा और दूसरा आर्म तो प्रेजेंट हो नहीं सकता बिकॉज द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप पोजिशन। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक। सो टीलो का मतलब होता है टेल, टिप पे प्रेजेंट होगा, टी फॉर टीलो, टी फॉर टिप, याद रखो। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा से नीचे मैं लेके आता हूं, अगर इसको थोड़ा से नीचे लेके आता हूं, एक शॉर्ट आर्म होगा भाई। अगर सेंट्रोमियर को मैं थोड़ा से नीचे लेके आता हूं, एक शॉर्ट आर्म होगा और एक लॉन्ग आर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो अगर टर्मिनल पोजीशन से थोड़ा से नीचे लेके आया तो सो ओके देयर विल बी अ शॉर्ट आर्म एंड ओके देयर विल बी अ मतलब लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म इज वेरी लॉन्ग, so that okay represents your acrocentric chromosome. One arm is very short and one arm is very long, this is acrocentric.
दिस इज टीलोसेंट्रिक। अब आएगा सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में, ताकि दो इक्वल आर्म्स में कन्वर्ट हो, बट सब मेटासेंट्रिक इज अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सो अगर मैं जो आपका जो सेंट्रोमियर है उसको बीच से थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है। यहाँ क्या था, वेरी शॉर्ट आर्म वेरी लॉन्ग आर्म, यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म है एक लॉन्ग आर्म है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। ये था आपका सब मेटासेंट्रिक। तो आपका मेटासेंट्रिक में क्या होगा, पूरा सेंटर में प्रेजेंट है, हैविंग इक्वल आर्म्स, बोथ आर्म्स आर इक्वल, दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो ये जो आपका डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन किस बेसिस पे हो रहा है भाई, ये जो एंटायर डिवीजन हो रहा है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन के ऊपर में डिपेंड करेगा, एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर वी कैन सब डिवाइड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू these four categories, where in case of the telocentric the centromere is present at the tip of the chromosome. In case of acrocentric, just uh, like a little bit far away from the terminal position, so that it is having a very short arm and a very long arm. सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि थोड़ा से आपका जो सेंटर के आसपास थोड़ा रहेगा, having a short arm and a long arm, and in case of the okay like आप बोल सकते हो, and in case of the metacentric chromosome both arms are equal. ठीक है, ओके